सभी को जय मसीह. Praise the Lord. Man, what a privilege. We really have a privilege that in midst of this situation, God has enabled us to gather and worship His holy name. So why don't we all bow down and thank Him for this? Why don't we all pray together? क्यों ना एक साथ मिलकर हम प्रार्थना करें, हमारे परमेश्वर को धन्यवाद करें. Heavenly Father, once again I thank you, O Lord, for this time that you have enabled us, O Lord God. In midst of this situation, O Lord God, you have enabled us that we could gather, O Lord God, and we could lift your holy name, O Master. It's truly a privilege, O Lord God, and we thank you for that, O Lord God. Thank you, O Lord God, for each and everyone who have come here, O Lord God. Lord God, you enable us that we give our best offering to you, O Lord God, for you alone deserve all the glory, O Master. Thank you once again for this time, O Lord God. Lord God, we give the whole service in your hand, O Lord. We give the whole worship service. We give the whole service in your hand, O Lord God. You enable us, you lead and guide us, O Lord God. We ask this all in your precious and powerful name, Lord Jesus Christ. Amen. उत्तेजना के लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा. Psalmist says in 98 that sing to the Lord a new song, for he has done marvelous things. His right hand and his glory and his holy arms have worked salvation for him. The Lord has made his salvation known and revealed his righteousness to the nation. He has remembered his love and his faithfulness to us. All the ends of the earth has seen the salvation of our Lord, and our Lord alone deserves glory. Amen. Our Lord is a glorious God, and he is the one who deserves all the praise. Our God is alone a glorious God. हमारा परमेश्वर एक महिमा में परमेश्वर है और उनकी ही महिमा होनी चाहिए. तो क्यों ना एक साथ मिलकर हम ये गीत गाकर परमेश्वर की महिमा करें. Why don't we sing this song together? Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
जीवन मेरा जीवन यीशु की जय अब मेरा जीवन यीशु की जय ओ हालेलुया हालेलुया यीशु की जय ओ हालेलुया हालेलुया यीशु की जय अब मेरा ज्योति मेरा ज्योति यीशु की जय अब मेरा ज्योति यीशु की जय ओ हालेलुया हालेलुया यीशु की जय ओ हालेलुया हालेलुया यीशु की जय अब मेरा सब कुछ यीशु की जय अब मेरा सब कुछ यीशु की जय ओ हालेलुया हालेलुया यीशु की जय ओ हालेलुया हालेलुया यीशु की जय अब मेरा सब कुछ अब मेरा सब कुछ यीशु की जय अब मेरा सब कुछ यीशु की जय ओ हालेलुया हालेलुया यीशु की जय ओ हालेलुया हालेलुया यीशु की जय क्यों ना हम तालियों का भेंट दें हमारे परमेश्वर को So Lord Jesus Christ, we thank you, O Lord, for everything, O Lord. You alone deserve all the glory, O Master. Yes, O Lord God, there is no one like you, O Lord. We want to praise your name, for you alone deserve all the glory, O Lord God. Thank you so much, O Lord. Thank you so much. हाँ प्रभु जी कोई मान महिमा में परमेश्वर है और तेरी आराधना हम करना चाहते हैं, स्तुति हम करना चाहते हैं प्रभु जी. Thank you, O Lord Jesus. Thank you, O Lord. Fill this place, O Lord. Fill this place with your glory, O Lord God. Fill us, O Lord God. Fill us, O Lord God. Fill us, O Lord. Yes, Jesus. Fill us, O Lord Jesus. We need more of you. We need more of you, O Lord. We need more of you. So Lord, fill this place. Oh, Jesus Christ. Fill us all, O Lord, with your spirit, O Lord. Jesus Christ. Want you, O Lord. Want you, O Lord. I will extol the Lord at all time. His praise will always be in my lips. I will glory in the Lord. Let the afflicted hear and rejoice. Glorify the Lord with me. Let us exalt his name together. मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा. उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी. मैं यहोवा पर घमंड करूँगा. नर्म लोग यह सुनकर आनंदित होंगे. मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें. It's our time to rejoice, for our God is a glorious God. हमारा परमेश्वर एक महिमा में परमेश्वर है और क्यों ना हम आनंद मनाएं. Why don't we praise the God who is worthy and who deserve all praise? क्यों ना एक साथ मिलकर हम ये गीत गाएं, worthy oh worthy. Worthy
The trumpeters and musicians join in the unison to give praise and thanks to the Lord, accompanied by trumpets, cymbal, and other instrument. The singers raised their voice in praise to the Lord and sang, "He is good, His love endures forever." Then the temple of the Lord was filled with the cloud, and the priests could not perform their service because of the cloud, for the glory of the Lord filled the temple of God. तो जब तुरैया बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे, और तुरैया, सांझ आदि बाजे बजाते हुए यहोवा की यह स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे कि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है, तब यहोवा के भवन में बादल छा गया, और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। Wow. We could only imagine how wonderful it would be to be in the presence of God's glory. And we want that. This moment, Lord, we want that. We want to be filled with you, O Lord. We want your presence, O Lord God. Lord, we are here just to lift your name, O Lord God. Like that moment, O Lord God, when you fill that place with your glory, O Lord God, with your presence, O Lord God. We want that right now, Master. Fill this place, O Lord God, with your glory, Lord. Because we want more of you, O Lord. We want more of you in our life. you
सजदा हो तेरी, सजदा तेरी, सजदा हो तेरी, स्वर्ग से आया तू, मुझे बचाया तू, स्वर्ग से आया तू, मुझे बचाया तूने, यीशु, 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 मेरे यीशु, 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 मेरे यीशु, यीशु, परमेश्वर की महिमा करें अपने शब्दों के द्वारा। We need more of you, Lord. We need more of you, Jesus. Thank you, Lord, once again, Lord. You once came for us, O Lord God. You took away all our sin, O Lord God. And again, Lord Jesus, you're going to come in a glorious form, Lord. And you're going to take us with you, O Lord. We are that privileged ones, O Lord God, who one day would be with you, O Lord. Lord, we ask, O Lord God, we ask, O Lord God, that you cleanse us, O Lord God. Cleanse this heart, O Lord God, once again, O Master, and purify it, O Lord God, and make it holy, O Lord God. We need that, O Lord God.
We want you to cleanse our heart, O Lord God. Lord, this song is not just a song, O Lord God, but it's our prayer, O Lord God. We ask, O Lord God, that you would answer this. Yes, Lord God, this is not only a song, but we want to make this our commitment, O Lord God, that we want to come closer to you, O Lord God. Lord, we want you once again to cleanse our heart, O Lord God. The heart of stone, O Lord God. The heart of anger, O Lord God. The heart of hatred, O Lord God. We want all this evilness to be purged out, O Lord God. And give us a new heart, O Lord God. The heart so refined, O Lord God, that only seeks your love, O Lord God. Only dwells in you, O Lord God. Once again, I thank you, O Lord God, for this time. पिता परमेश्वर, फिर से धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, इस आराधना का भेंट को प्रभु जी आपने स्वीकारा है। हमें ये विश्वास है प्रभु जी, हमें तू मदद कर प्रभु जी कि हम तेरे और करीब आए प्रभु जी। पूरी सेवकाई प्रभु जी आपके हाथों में हम देते हैं। तू हमें चला प्रभु जी। ये बिनती प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से हम मांगते हैं।
तू सुन और कबूल कर, आमीन। फिर से जय मसीह सभी को। ये हमारा भेंट का टाइम है। क्यों ना हम हमारे परमेश्वर के राज के लिए उत्तम भेंट दे, बिकॉज आवर गॉड इज अ जनरस गॉड एंड ही वांट्स हिज पीपल टू बी जनरस एज ही इज। सो व्हाई डोंट वी गिव आवर बेस्ट ऑफरिंग टू आवर लॉर्ड टुडे? क्यों ना हम ये गीत गाएं? व्हाई डोंट वी सिंग दिस सॉन्ग? दुनिया की कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, दुनिया की कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, कितना प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया, कितना प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। शालों के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, शालों के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, कितना प्यारा यीशु का नाम, शालों में हालेलुया, कितना प्यारा यीशु का नाम, शालों में हालेलुया। इस दिल के कोने कोने में आइए हम अपने भेंट के लिए हम प्रार्थना करें। हम अपने आंखों को बंद रखें। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु इस समय के लिए। प्रभु आप हमारे महान शुद्ध पवित्र परमेश्वर है। प्रभु पिता मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु इस भेंट के लिए। प्रभु पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इस भेंट का उपयोग प्रभु आपके राज्य के लिए हो प्रभु। जिन्होंने दिया प्रभु उन्हें आप आशीषित करें प्रभु। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु इस समय के लिए प्रभु। जिस तरह से प्रभु हम देख रहे हैं प्रभु कई महीनों से प्रभु यीशु इस राज्य में, इस पूरे देश में और इस जगत में प्रभु इस कोरोना का प्रभु यीशु जो ये महाबीमारी है प्रभु पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जो फैल रही है प्रभु पिता मैं मांगता हूँ प्रभु आप प्रभु यीशु इसे प्रभु हमें इससे प्रभु आप मुक्त करें प्रभु। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु हमारे पूरे कलीसिया के लिए प्रभु यीशु। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कई लोग प्रभु यीशु हमारे कलीसिया में बीमार है प्रभु। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आपका पवित्र हाथ प्रभु उन सभी के ऊपर रहे प्रभु। आपकी चंगाई प्रभु मैं मांगता हूँ प्रभु। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि इस बीमारी के वजह से प्रभु ये कोरोना के वजह से प्रभु कई लोगों के घर में प्रभु यीशु हम देख रहे प्रभु जो कठिन परिस्थिति है प्रभु। कई लोगों की प्रभु नौकरियां प्रभु जा चुकी है। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु आप ले प्रभु उन सभी को प्रभु यीशु उनके मनों में प्रभु शांति दे प्रभु। जो उनकी आर्थिक परिस्थिति है प्रभु उन्हें आप ऊंचा उठाए प्रभु। कहीं ना कहीं से प्रभु सहायता जो मिल रही है प्रभु पिता मैं इस बात के लिए प्रभु धन्यवाद देता हूँ प्रभु। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु हमारे कलीसिया के लिए प्रभु हम सभी को प्रभु आपके पवित्र आत्मा में प्रभु चलाए प्रभु शांति दे प्रभु। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आज के दिन के लिए और जो सुंदर सुबह है प्रभु हमारे पास्टर प्रभु जो वचन लेकर आने वाले प्रभु। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु आप हमें सिखाइए प्रभु। आप हमें प्रभु यीशु पवित्र आत्मा में चलाइए प्रभु। पिता मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु इन सारी बातों के लिए प्रभु। आगे का समय प्रभु मैं आपके चरणों तले रखता हूँ। मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। Joy to welcome all you beloved in the Lord. और ये बहुत आनंद की बात है कि मैं आप सभी का अभिवादन करूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। I felt it was a homecoming for me. और मुझे ऐसे लगा कि मैं फिर से घर आ गया हूं। And to stand on this platform behind this pulpit
it gives me a great joy. और इस मंच पर खड़े होकर इस पुलपिट के पीछे मुझे बहुत आनंद हो रहा है। And I'm very sure that you all enjoy the worship. और मैं जानता हूँ कि आप सभी ने जो स्तुति आराधना है उसका आनंद उठाया And है। I want to thank all those who work very hard to make it possible. और मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ जिन लोगों ने कड़ी मेहनत की कि ये संभव हो सके। Worship team स्तुति आराधना का दल and recording team और जो रिकॉर्डिंग का जो दल है and all the technical team that had supported to get this recording done. और जो टेक्निकल का झुंड है जिन्होंने बहुत मदद किया कि ये रिकॉर्डिंग हो सके, And we praise God for that. और हम प्रभु को उसके लिए धन्यवाद देते हैं। We are negotiating with this management और हम मोल भाव कर रहे हैं यहाँ का जो मैनेजमेंट है उनसे। and our secretary Daniel Khatiwada is continuing to negotiate. और जो हमारे सेक्रेटरी है डैनियल खातीवाड़ा वो मोल भाव कर रहे हैं। But meanwhile we are allowed to carry on this recording. लेकिन तब तक हमें इजाज़त दी है कि हम ये रिकॉर्डिंग कर सके। And when the government gives us a green signal, then we will all gather here together. और जब हमारी गवर्नमेंट हमें कहेगी कि हम फिर से सेवा शुरू कर सकते हैं तब हम सब यहाँ पर एकत्रित होंगे। And I believe that you all are looking forward to that time. और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं। Now to get to the word of God, और हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। you have a long text today. और आज का जो मुख्य वचन है वो बहुत लंबा है। The title for today's sermon is Abraham's the intercessor with God. और आज का जो शीर्षक है वो ये है अब्राहम परमेश्वर से मध्यस्थी करता है। Abraham the intercessor with God. अब्राहम जो परमेश्वर के साथ मध्यस्थी करता है। And you remember that I have been bringing messages from life of Abraham. और आपको याद होगा कि मैं अब्राहम के जीवन से संदेश को लेकर आ रहा That I था। started from Hebrews chapter 11, the names that are entered in fame, the hall of fame, hall of faith. और जो इब्रानियों के 11वें अध्याय से लिया गया है जो हीरोज हैं उनके बारे में जो एक एक करके वो विश्वास का स्मारक बने। When we came to the name of Abraham, और फिर हम अब्राहम के और आए। I have taken many weeks. और मैंने काफ़ी हफ्ते लिए हैं। As a matter of fact, that this is the 5th sermon on Abraham. और ये 5वां संदेश है अब्राहम के ऊपर। And we continued. और हम लगातार इसे जारी रखेंगे। I believe that there would be another one more sermon on Abraham. और एक और संदेश अब्राहम के जीवन के ऊपर होगा। Let us hear the reading of the text. और क्यों ना हम जो मुख्य वचन है आज का उसे सुने। Genesis chapter 18, 1 to 15. और उत्पत्ति का 18 अध्याय वचन 1 से 15। Genesis 18, 1 to 15. उत्पत्ति का 18 अध्याय वचन 1 से 15। अब्राहम मेरम के बांज वृक्ष के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंखें उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चलने न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पाँव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊँगा और उससे आप अपने अपने जी को तृप्त करें। तब उसके पश्चात आगे बढ़े, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हो। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा, 3 सआ मैदा जल्दी से गूंद और फुलके बना।
फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसने जल्दी से उसे पकाया। तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस जो उसने पकवाया था लेकर उनके आगे परोस दिया और आप वृक्ष तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊँगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मानसिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंस कर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? निश्चय नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊँगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं तू हंसी तो थी। Let us look up to the Lord. क्यों ना हम प्रभु की ओर देखें। Lord, I commit these words of yours प्रभु मैं ये वचन को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ that the Holy Spirit would anoint in the hearing of all people. कि पवित्र आत्मा जो लोग सुन रहे हैं उनके कानों को अभिषेक करे Help us to keep our ears open और हमें मदद करे कि हम हमारे कानों को खुला रख सके and spiritual eyes open, और आत्मिक आंखों को खुली रख सके and help our hearts to be open to receive your word. और हमें मदद करे कि हमारा हृदय वो खुला रहे कि हम आपके वचन को ग्रहण कर सके। In Jesus' most precious and wonderful name we pray. और यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen and amen. आमीन और आमीन। First of all, I want to point out to you, और सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, as we read from the scripture, और जैसे हमने वचन से पढ़ा, Abraham had 3 divine visitors. और अब्राहम के पास 3 यात्री थे। This must have taken place after 2 or 3 months after God made second covenant with the sign of circumcision. और ये शायद 2 या 3 महीने बाद हुआ होगा जब परमेश्वर ने अब्राहम से दूसरी वाचा बांधी थी जो खतना का था। So we see that Abraham had a unique visitors. और हम देखते हैं कि अब्राहम के पास अनोखे यात्री थे। They were not ordinary visitors. और वो साधारण यात्री नहीं थे। They were divine visitors. और वो दैविक यात्री थे। Abraham had no idea who was visiting him. और अब्राहम को कुछ पता नहीं था कि उसे कौन मिलने आ रहे हैं। Abraham took it for granted that they were one of those travelers. Normally they pass by. और अब्राहम को ऐसे लगा कि ये साधारण यात्री है जो यहाँ से गुजर रहे हैं। The scripture says Abraham had put his tent in Mamre, that is the name of place. और जैसे वचन बताता है कि अब्राहम ने जो तंबू बांधा था ममरे में, By the oasis. और ओएसिस के द्वारा। Oasis, a fertile land with a spring of water. और उसका मतलब है कि वो उपजाऊ भूमि होती है जहाँ पर पानी होता है। Surrounded by vast desert land. और उसके इर्द गिर्द वो जो सूखा रहता है। And Abraham was very rich man by this time. और अब्राहम बहुत अमीर व्यक्ति था उस समय तक। He had a large size of live stocks, that is cattle and camels and other animals. और उसके पास बहुत सारा भेड़ बकरी थे। He had many servants. और बहुत सारे दास थे। And he lived in tent. और वो तंबू में रहा। And all these patriarchs, Abraham
Isaac and Jacob, they always lived in tents. और ये जो सारे अब्राहम और याकूब ये सारे तंबू में रहते थे। Maybe that was required to live in a desert. और शायद वो जो सूखा था उसके बीच में रहने के लिए तंबू की It जरूरत थी। also signifies the impermanency, और वो ऐसे भी दिखाता है कि वो स्थिर है। and it is not a permanent. वो स्थिर नहीं है, वो उसे बार बार जगह बदलनी होती है। And whenever God asked him to move, he could dismantle the tent and move on. और जब परमेश्वर उसे बताते थे तब वो तंबू को खोलकर फिर उसे दूसरी जगह जाना होता We था। can have all the riches of the world if God provides us. और हमारे पास दुनिया की हर एक चीज हो सकती है जो परमेश्वर हमें देते हैं, But never possess it. लेकिन कभी भी उसे थामे नहीं रहना If you है। try to possess the riches, and the riches would possess you. अगर आप उस पर अधिकार दिखाएंगे तो वो आप पर अधिकार दिखाना शुरू And do करेगा। everything what the Lord wants you to do, और वो करे जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप करें, but be willing to move on when God says move on. लेकिन जब परमेश्वर कहते हैं कि आगे बढ़ना है तो हमारी इच्छा होनी चाहिए कि हम आगे बढ़े। Abraham practiced entertaining strangers. और अब्राहम ने जो यात्री होते थे उन्हें वो देखभाल करता था उनकी। People who lived by the oasis, और जो लोग ओएसिस के यहाँ रहते थे and that is in the middle of desert, और रेगिस्तान के बीच में जो लोग रहते थे, and passers-by, the travelers had a great difficulties of passing through this desert land. और जैसे वो रेगिस्तान के इसमें से होकर गुजरते थे तो उनके लिए वो बहुत कठिन हो जाता था कि रेगिस्तान में से वो गुजरे। All were conscious of that. और सबको ये बात पता थी। So it was practiced during those days. और ये तभी ऐसा किया जाता था। And later on, Arab people, they carried on this practice. और फिर बाद में अरबी लोगों ने उस प्रक्रिया को करना शुरू किया। And they would welcome the strangers passing by. और जो भी अनजान व्यक्ति उनके यहाँ से गुजरता था वो उन्हें बुलाते थे अपने घर They में। used to say this phrase, और वो ऐसे कहते थे, please visit to my humble hut. और वो ऐसे कहते थे कि आप मेरे द्वार पर पधारे। And this was a traditional practice. और ये इस तरीके से कार्य किया जाता था। They would welcome the strangers, wash their feet, make them to sit under the tree. और वो जो अनजान लोग हैं उनको बुलाते थे, उनके पैरों को धोते थे और वृक्ष के नीचे उन्हें बैठने के लिए कहते थे। Feed them with food. और उन्हें खाना देते थे। And then fill their bottles or bags of water and feed their camels. और उन्हें वो पीने के लिए पानी देते थे और उनके पास जो थैली होती थी उसमें भी पानी भरते थे और उनके ऊंटों को पानी देते थे। And let them pass on. और फिर वो उन्हें अपनी यात्रा के लिए आगे छोड़ते थे। And that was a practice. और ये कार्य किया जाता था। Abraham found 3 strangers standing by his tent. They were not traveling on camels. और अब्राहम ने 3 यात्री को देखा जो उसके तंबू के बाहर खड़े थे। वो वहां से अपने ऊंटों पर गुजर नहीं रहे थे। I don't think he gave much attention to this. और मुझे नहीं लगता कि उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान दी To होगी। think how 3 strangers standing by his tent without camels. कि उसने ये नहीं सोचा कि 3 यात्री जो मुझे नहीं जानते वो लोग तंबू के बाहर खड़े हैं और उनके पास ऊंट भी नहीं है। And he ran to them and welcomed them. और अब्राहम उनके तरफ भागा और उनका स्वागत किया। This present environment, और जो आज का समय चल रहा है, if we try to do that, there would be many who would like to take advantage of us. और अगर हम ये करने की कोशिश करें तो ऐसे कई लोग होंगे जो हमारा फायदा उठाएंगे। Of course, that was needed during that time. और उस समय वो जरूरी था वैसे करना। Most importantly, और मुख्य बात Abraham did not know who these visitors were. कि अब्राहम को ये नहीं पता था कि ये जो यात्री है वो कौन है। In English we read that he addressed to them saying, "My Lord." और हम अंग्रेजी में ऐसा पढ़ते हैं कि वहाँ लिखा है कि मेरे प्रभु। He addressed to them as Lord. और उन यात्री को अब्राहम ने प्रभु कहा।
but that was a common practice और वो बहुत साधारण कार्य था करने के लिए, to address to any strangers जो अनजाने लोग होते हैं उनके or लिए, rich people. या जो अमीर लोग होते In हैं. English, it is written with the running small letters LORD. और अंग्रेजी में उसे छोटे अक्षरों में लिखा है LORD. And even today, it is practiced in the code of law. और आज भी वो कार्य किया जाता है कोर्ट में. Judges are normally addressed as my lord. और जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें प्रभु करके कहा जाता In the है. biblical time, और जो पवित्र शास्त्र के समय में, wives also address their husbands as my lord. और जो पत्नियां थी अपने पति को वो मेरे प्रभु ऐसे कहती थी. It is very unthinkable today. और आज के ज़माने में ऐसा सोचा नहीं जा सकता. So, what a point I want to make here, और यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता though हूँ it is written Abraham addressing to them as my lord, कि यहाँ पर ऐसे लिखा है कि अब्राहम उन्हें मेरे प्रभु ऐसे कहता है. he was not knowing that he was God and addressing God, because the writing is quite different. लेकिन उसे ये पता नहीं था कि क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ वो अलग है. And later on, when he discovered that it is God himself, और जब बाद में उसे पता चला कि वो यात्री जो थे वो परमेश्वर है, then when he addressed to God as Lord, it is spelled with capital LORD. और जब बाद में अब्राहम को पता चला तो पवित्र शास्त्र में उसे बड़े अक्षरों में लिखा गया So है. the point is that he did not know, as he was entertaining these visitors, he did not know who they were. और यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब्राहम को ये पता नहीं था कि वो यात्री ही है, वो परमेश्वर है करके. After circumcision, Abraham was a transformed man. और खतना के बाद अब्राहम वो एक परिवर्तन हुआ व्यक्ति He था. showed his humility and generosity, और उसने वहाँ पर अपना उद्धारता को दिखाया, that to strangers, और वो भी अनजाने लोगों को, without expecting anything in return. और बिना किसी चीज को पाने के लालसा में. Abraham at that time was 99 years old, और अब्राहम उस समय 99 वर्ष का था, and Sarah was 89 years old. और जो सारा थी वो 89 वर्ष की थी. During the conversation, और जो वार्तालाप के बीच में, it became clear that to Abraham, और वो स्पष्ट हुआ अब्राहम को, one who is talking to him जो व्यक्ति उससे बात कर रहा है, was none other than God, और वो कोई और नहीं लेकिन परमेश्वर है, to whom he himself had addressed as Most High God and Creator of heaven and earth. जिसे उसने ही परमेश्वर को कहा था कि परमेश्वर महान अति ऊंचे पर विराजमान प्रभु. So God, Most High God, the Creator of heaven and earth, came in form of human being. So, महान और अति ऊंचे पर विराजमान परमेश्वर जो रचेता है स्वर्ग और पृथ्वी के, वो खुद उससे मिलने आए थे. Don't confuse it with the incarnation of our Lord Jesus Christ, the Dehadari. और उसे आप उलझन में ना जाए कि जो देहधारी रूप का परमेश्वर का. When Jesus came, he got incarnated. You don't compare with that. और जब यीशु मसीह आए तो वो देहधारी होकर आए, तो उसे और इस चीज की तुलना आप ना करें. And this was totally different phenomenon. और ये पूर्ण रूप से अलग बात थी. For a short while, God took form of human being. कुछ समय के लिए परमेश्वर ने जो मानवीय रूप लिया था. Why should it look improbable that God, who created man in his own image, कि परमेश्वर जो जिसने मनुष्य को अपने ही रूप में रचा है, and why it should be improbable that he takes the form of human being? तो वो क्यों एक मनुष्य का रूप धारण करके आए? God can do all things. परमेश्वर वो सब कुछ कर सकते हैं. Secondly, और दूसरी बात, God set timeline for his promises to begin to be fulfilled. और परमेश्वर ने एक समय रेखा रखा था कि वो जो वाचा उन्होंने बांधा है उसे पूरा हो We'll सके. hear the reading of verse 10. और हम यहाँ पर वचन सुनेंगे जो उत्पत्ति 18वां अध्याय वचन 10. उसने कहा,
मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊँगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। So God made it very clear. और परमेश्वर ने बहुत स्पष्ट रीति से Next बताया year by this time, कि जो आने वाला साल है इस समय में when I visit you, जब मैं तुम्हें फिर से मिलूंगा, your wife Sarah would have a son. जो तेरी पत्नी है सारा उसे एक पुत्र होगा। He did not just say that you will have a son. और उसने परमेश्वर ने सिर्फ ऐसे ही नहीं कहा कि एक पुत्र होगा। Your wife Sarah would have a son. तेरी पत्नी सारा उसको पुत्र होगा। You remember that when he had Ishmael, he was not a promised son. जब इश्माइल पैदा हुआ वो वाचा का पुत्र नहीं था। Now God saw Abraham was fully prepared. और परमेश्वर ने देखा कि अब्राहम पूर्ण रूप से तैयार He हो is गया more था mature than he was earlier. और अब वो बहुत ज्यादा परिपक्व हो गया था जैसे वो पहले था। And therefore Abraham did not hesitate to accept that promise. इसलिए अब्राहम वो हिचकिचाया नहीं कि वो वाचे को स्वीकार कर सके। Of course, Sarah had problem. लेकिन सारा को समस्या थी She hesitated, और उसे हड़बड़ाहट हुई, and God graciously overlooked that. लेकिन परमेश्वर ने उसे अनदेखा किया। And then we come to verse 14, और फिर हम वचन 14 में आते हैं and God asked a question. और परमेश्वर ने यहाँ पर प्रश्न पूछा Is anything too hard for the Lord? कि क्या परमेश्वर के लिए कोई भी बात कठिन है? And the answer is no, nothing is too hard for God. और उत्तर है नहीं, परमेश्वर के लिए कोई भी बात कठिन नहीं है। And that we have to remember that. और वो हमें याद रखना है If God has given us promise, कि परमेश्वर ने हमें अगर कोई वादा दिया है you are very confident that God has spoken to you. और आपको पूरा भरोसा है कि परमेश्वर ने आपसे बात की है, God has spoken through His word. कि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा आपसे बात Whatever किया that है, promise or promises might be, और वो जो कोई भी वादा या वाचा हो He will fulfill that. और वो परमेश्वर उसे पूरा It will करेंगे come to take place. और वो अपने समय पर वो हो जाएगा। And if you imagine that this God would do this for me or God would do that for me, अगर आप सिर्फ अपने योजना बनाए कि परमेश्वर मेरे लिए ये करेंगे, परमेश्वर वो करेंगे, God might do that, परमेश्वर वो कर सकते हैं or God might not fulfill that at all. या फिर परमेश्वर उसे बिल्कुल भी नहीं But करेंगे। if God has promised you, लेकिन अगर परमेश्वर ने आपको वादा किया है, it might take time. उसे समय लगेगा। I have been showing through the life of Abraham और मैं आपको अब्राहम के जीवन से ये बता रहा why था God delayed to fulfill His promises for that long. क्यों परमेश्वर ने देरी की कि वो वाचा को पूरा कर But सके। then finally it is time now, लेकिन अब वो समय आ गया था because God saw that Abraham was ready to receive the promise. क्योंकि परमेश्वर ने देखा कि अब्राहम वो तैयार था कि वो उस वाचा को स्वीकार कर So सके। you and I, we can take that. The question God asks, is there anything too hard for the Lord? तो ये आप और मैं इस प्रश्न को ले सकते हैं कि क्या कोई भी बात परमेश्वर के लिए असंभव है? It is not someone else asked. और ये किसी और ने नहीं पूछा, God Himself is asking us. और ये परमेश्वर खुद पूछ रहे थे If God has promised you, कि अगर परमेश्वर ने आपसे कोई वादा किया है, even if it is too difficult for us to understand or accept it, but it will happen because God said it. अगर ये हमारे समझने के लिए मुश्किल है या देरी हो रही है, लेकिन ये पूरा होगा क्योंकि परमेश्वर ने इसे कहा है। Now we see that God is revealing His secret to Abraham. और हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर जो गुप्त बातें हैं वो अब्राहम को बता रहे हैं, And that is also an amazing thing, और ये भी बहुत अद्भुत बात है that God should reveal the secret of His heart to someone. कि परमेश्वर उनके हृदय में जो गुप्त बातें हैं वो किसी और पर प्रकट करे। God wants to share His secret. God has many secrets. God has many burden in His heart. He is looking out for people
who fulfill the conditions. और परमेश्वर के हृदय में कई गुप्त बातें हैं और उनके हृदय में बोझ है और वो ढूंढते हैं कि कोई एक व्यक्ति मिले जिनके साथ वो उस बातों को बांट सके। God had already decided. और परमेश्वर ने पहले से ही तय कर लिया God था। had decided to destroy a twin city, that is Sodom and Gomorrah, the evil cities. और परमेश्वर ने ये पहले ही सोच लिया था कि सदोम और गमोरा ये दोनों शहर जो दुष्ट शहर थे उन्हें नाश करना है। Now, why does God share that to someone? और फिर ये क्यों परमेश्वर किसी और के साथ बांटते हैं? Is another question. और ये दूसरी बात है, Is God's decision alterable? क्या परमेश्वर का जो निर्णय है उसे बदला जा सकता है? Does God change his mind? क्या परमेश्वर अपने विचारों को बदलते हैं? When God decides something or promises something, जब परमेश्वर कुछ निर्णय लेते हैं or God pronounces a judgment, या परमेश्वर जब कोई न्याय को प्रकट करते हैं, it is always with the possibility of changing his course. और यहाँ पर हमेशा एक समय होता है कि वो बदल सके, And if the conditions are met. अगर जो बातें बताई गई है वो पूरी हो तो। In the Old Testament we see God warned his people through prophets. और हम पुराने नियम में देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों को भविष्य वक्ताओं के द्वारा चेतावनी दी, Time and time again he warned of coming judgment. और समय दर समय परमेश्वर उन्हें चेतावनी देते थे। With that he also asked people to repent. और चेतावनी के साथ परमेश्वर ने लोगों को पश्चाताप करने के लिए भी कहा। When people repented, God changes his mind. और जब लोग पश्चाताप किए तब परमेश्वर ने अपने विचारों को बदला। So it is not God going back to his word. और ये परमेश्वर नहीं जो अपने जो कहे हुए शब्द को वापस ले। And when he promises or when he pronounces judgment, जब परमेश्वर कोई न्याय को बताते हैं, it is always conditional. और वहाँ पर कई बातें होती है जो करनी होती है। If his people repent and turn back to God, he would change his mind. और अगर उनके लोग पश्चाताप करें और अपने बुरे मार्ग से फिरे तो वो इजाजत देते हैं। Nothing moves the heart of God like repentance does. और परमेश्वर के हृदय को सिर्फ पश्चाताप ही बदल सकता है। It looks to me, और ये मुझे ऐसे दिखाई देता है, God himself wanted Abraham to intercede against his decision. और परमेश्वर खुद ये चाहते थे कि अब्राहम जो लोगों के लिए मध्यस्थी करे। Now listen carefully. और आप ध्यान से सुने, Our God is not a trigger happy God. और हमारे जो परमेश्वर है वो जो छल होता है उससे खुश नहीं होते। And he is not happy to destroy people. और जो परमेश्वर है वो अपने लोगों को दर्द देकर और उनका नाश करके वो खुश होने वाले परमेश्वर God नहीं is है। always looking out for someone to intercede with him to change his mind. और परमेश्वर हमेशा एक व्यक्ति को ऐसे देखते हैं जो उनसे मध्यस्थी करे और परमेश्वर के विचारों को बदले। God made it very clear और परमेश्वर ने बहुत स्पष्ट रीति से through कहा, prophet Ezekiel, और जो भविष्य वक्ता एजिकेल है उसके द्वारा, that he is looking for someone कि वो एक व्यक्ति को ऐसे ढूंढ रहे stand in हैं the gap जो उस गैप में खड़े रहे and to intercede. और उनके और लोगों के लिए मध्यस्थी So करें। turn to Ezekiel chapter 22 verse 30. और हम एजिकेल का किताब में आएंगे और 22वां अध्याय 30 वचन में, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। So God was searching for an intercessor to stand between him and the people. और परमेश्वर एक मध्यस्थी करने वाले को खोज रहे थे कि परमेश्वर और उनके लोगों के बीच में वो खड़ा रहे And plead with him और उनके पास उनके लिए विनती करे, so he would not have to destroy them.
ताकि परमेश्वर लोगों का नाश न करे। God gave reason to why he was revealing a secret to Abraham. और परमेश्वर ने ये कारण दिया कि वो क्यों जो अपनी गुप्त बातें हैं वो अब्राहम के साथ बांट रहे He थे। doesn't share his inner thoughts or secrets and his heart burden to everyone. और परमेश्वर अपने हृदय का बोझ और जो गुप्त बातें हैं वो सभी के साथ नहीं बांटते। Here he has given the reason और यहाँ पर उन्होंने कारण दिया है why he wants to share with Abraham. कि वो क्यों अब्राहम के साथ बांटना चाहते हैं। Turn to chapter 18 verses 17 to 19. और हम 18वां अध्याय वचन 17 से 19 तक पढ़ेंगे। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूँ? अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियाँ उसके द्वारा आशीष पाएगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे और धर्म और न्याय करते रहे, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करें। Why God chose Abraham to reveal his inner thoughts, a secret of his heart? और परमेश्वर ने क्यों अब्राहम को चुना कि वो उन परमेश्वर के हृदय की जो गुप्त बातें हैं वो उससे बता He सके। had never shared this, that he is going to destroy Sodom and Gomorrah. और परमेश्वर ने ये कभी ये बात बांटी नहीं कि वो सदोम और गमोरा का नाश करना चाहते हैं। What qualified Abraham that is God should share his thought? अब्राहम ने ऐसा क्या किया था कि परमेश्वर ने उससे अपनी हृदय की बात कही। And God knew that Abraham would lead his posterity in the ways of God. और परमेश्वर को पता था कि अब्राहम अपने वंशज को परमेश्वर के मार्ग पर चलाएगा। That is what he said. और यही उसने कहा। I know Abraham, he would lead his posterities, his descendants in my ways. और यही परमेश्वर ने कहा कि मैं जानता हूँ कि अब्राहम अपने वंशजों को मेरे मार्गों पर चलाएगा। Therefore he decided to share his inner thoughts. और इसलिए परमेश्वर ने ये निर्णय लिया कि वो अपने मन की बात कहेंगे। So you want to have a hidden revelation from God? और अगर आपको जो परमेश्वर के मन की बात जाननी है तो Then make sure that you lead your own family in the ways of God. तो आप ये देखें कि आप परमेश्वर के मार्ग पर अपने परिवार को चलाएं। And why so many children of God's servants, pastors, children are wayward? और इतने जो पास्टर्स के जो बच्चे रहते हैं वो क्यों परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चलते? All these years, many people have asked me this question. और इतने सालों में कई लोगों ने मुझे ये प्रश्न पूछा Because है। everywhere we see pastors' children, most of pastors' children are wayward. हम कई बार देखते हैं कि और कई जगह हम देखते हैं जो पास्टर्स के बच्चे होते हैं वो परमेश्वर के मार्ग पर नहीं There are चलते। two reasons, as I see it. और यहाँ पर दो कारण है जैसे मैं देखता हूँ। One is pastors' children come under tremendous pressure. और एक है कि जो पासवान के बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा दबाव में आ जाते हैं। Everyone is looking and watching over these pastors' children. और हर कोई उन पासवान के बच्चों की ओर देखते रहता है। And at the end, और अंत में they cannot live as a normal children like other children. और फिर वो साधारण बच्चों की तरह नहीं रह पाते जैसे बाकी बच्चे रहते They हैं। feel rejected उन्हें तिरस्कार की भावना आती and then है they react. और फिर उस पर वो अपनी प्रतिक्रिया There's दिखाते another हैं। reason why pastors' children they become wayward. और यहाँ पर और एक कारण है कि पासवान के बच्चे परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चलते। And pastors are more open within their own family. जो पासवान है वो बहुत खुलेपन से रहते हैं अपने परिवार में। And they are off guard. They are not on guard. और वहाँ पर वो ध्यान नहीं रखते And they are open with everything and everyone within the family. और परिवार में वो हर एक चीज के लिए खुले रीति से रहते हैं। The children watch their father. और फिर बच्चे अपने पिता को देखते हैं They realize और फिर वो महसूस करते my हैं father is a different man
outside among other people, and when he is preaching, और वो ऐसे देखते हैं कि मेरा पिता जो बाहर प्रचार करता है वो अलग होता है, and he is quite a different person inside a home with the family. और वो बहुत अलग व्यक्ति होता है जब वो परिवार में होते हैं. In other words, और दूसरे शब्दों में the God's servants, if they do not practice what they preach, और अगर परमेश्वर के जो सेवक है जो वो प्रचार करते हैं वो कार्य नहीं करते तो pastors' children are the first one to notice that. और पासवान के बच्चे वो पहले होते हैं जो इस चीज पर ध्यान देते हैं. Few years back, my second daughter Salome said, और कुछ साल पहले मेरी जो दूसरी बेटी she didn't सलोमी tell me, उसने she कहा, was telling others, and I got to hear that. और उसने मुझसे नहीं कहा लेकिन उसने किसी और से कहा था जो मुझे पता चला. This is what she said. और ऐसा उसने कहा, She said, I know one preacher who practices what he preaches. उसने ऐसे कहा कि मैं एक व्यक्ति को ऐसे जानती हूँ जो वो प्रचार करता है वो कार्य भी करता है. And that is my father, she said. और वो मेरा पिता है, ऐसा उसने कहा. Now I have treasured that as my trophy. और मैंने उसे बहुत संभाल कर अपने पास रखा है. Because our children are very close to us, they watch us over and they know all our weaknesses and failures and our success. और हमारे बच्चे वो हमारे बहुत करीब होते हैं और वो हमारे दुर्बलताओं को और हमारे सफलताओं को जानते हैं. Those who lead their children the ways of God, और जो कोई अपने बच्चों को परमेश्वर के मार्ग पर चलाते हैं, and God chooses them to reveal His heart to them. और परमेश्वर उस व्यक्ति को चुनते हैं और अपने हृदय की गुप्त बातें बताते हैं. Thirdly, और तीसरी बात, Abraham, father of nations, अब्राहम जो राष्ट्रों का पिता, became an intercessor for God. और वो मध्यस्थी करने वाला बना परमेश्वर के प्रति. Abraham, father of nations, became an intercessor for God. और अब्राहम जो राष्ट्रों का पिता है वो मध्यस्थी करने वाला बना. We'll hear the scripture, और हम वचन को chapter पढ़ेंगे. 18, verses 22 and 23. और उत्पत्ति का 18वां अध्याय 22 और 23 वचन. तब वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे और अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया. तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? And so he started interceding with God. और फिर अब्राहम वो परमेश्वर के साथ मध्यस्थी करने लगा. We read, especially when you look into King James Version, और खास करके जब आप किंग जेम्स वर्जन में देखते हैं it becomes very clear. और वहाँ पे बहुत स्पष्ट रीति से बताता है, Abraham was closer to God. अब्राहम वो परमेश्वर के करीबी था. Now he ventured out to plead with God. और अब अब्राहम परमेश्वर के प्रति विनती करने लगा था. Of course, Abraham was more concerned of Lot, his nephew, and his family. और अब्राहम उसे बहुत चिंता थी अपने भतीजे लोत की. Another thing about Abraham, और दूसरी बात अब्राहम के बारे में, we don't read in the scripture that after Abraham rescued Lot, हम ये वचन में नहीं पढ़ते जब अब्राहम ने लूत के परिवार को बचाया. after that Lot kept in touch with Abraham. और उसके बाद लूत अब्राहम के साथ जुड़ा हुआ रहा. And there was no contact, sampark. और वहाँ पर कोई संपर्क नहीं था दोनों के बीच And में. yet Abraham, when he heard that God was going to destroy the city, और जब अब्राहम ने ये सुना कि परमेश्वर उस शहर का नाश करने वाले his हैं, concern was for Lot and his family. और अब्राहम का चिंता था उसके और लूत के और लूत के परिवार के लिए. Now when we look at the intercession that went on, और यहाँ पर हम जो मध्यस्थी देखते हैं, Abraham, he gives a moral argument in his intercession. और अब्राहम वो एक नैतिक रीति से वो परमेश्वर के साथ बातचीत कर रहा था. And he presents a moral argument. और वो नैतिक रीति से बातचीत कर रहा था परमेश्वर के साथ. That is a supreme judge, the righteous judge, the judge of all earth. और जो न्यायाधीश है, And he will do the right thing.
और वो सही रीति से काम करेंगे। God is righteous. और परमेश्वर वो धर्मी है। When He judges anyone, और जब वो किसी का न्याय करते हैं He will do it in a righteous way. और वो धर्मी तरीके से करेंगे। Secondly, और दूसरी बात, righteous judge cannot destroy righteous along with the wicked. और जो धर्मी न्यायाधीश है वो धर्मी लोगों को दुष्ट लोगों के साथ नाश नहीं This is करेंगे। an age-old argument. Why do righteous suffer? और ये काफी समय से ये वार्तालाप चल रही है कि क्यों धर्मी लोग संघर्ष करते हैं And that too, why righteous people suffer along with the wicked. और क्यों धर्मी लोग वो जो दुष्ट लोगों के साथ संघर्ष करते हैं। God of the Bible is the supreme God, the only one God. और जो पवित्र शास्त्र के परमेश्वर है, जो सर्वव्यापी प्रभु है, He doesn't feel threatened when asked with the difficult questions. और वो घबराते नहीं है जब उन्हें कठिन सवाल पूछे जाते So He हैं। allowed Abraham to ask this difficult question. और तब परमेश्वर ने इजाजत दी अब्राहम को कि वो ये प्रश्न पूछ सके। So the intercession began. और वहाँ पर मध्यस्थी शुरू हुई। Abraham must have calculated, और अब्राहम ने ये जोड़ा होगा and in this city कि इस शहर में there must be at least 50 righteous people. वहाँ पर कम से कम 50 धर्मी लोग होंगे। And Lot and his wife, लूत और उसकी पत्नी, 2 daughters, 2 बेटियां and 2 sons-in-law, और 2 दामाद and their families. और उनके परिवार So their servants. और उनके दास। He calculated, he felt the Lot would have had influence on these people. और अब्राहम को ऐसे लगा कि इतने समय से ये लोग उनके साथ रह रहे हैं तो लूत का प्रभाव इन लोगों पर पड़ा होगा। So he calculated to see that at least 50 righteous people should be there in that city. तो अब्राहम को ऐसे लगा कि कम से कम वहाँ पर 50 धर्मी लोग होंगे। And so he put this question. और तब उसने ये प्रश्न डाला, If you find 50 righteous in that city, would you destroy the whole city and with them all 50 righteous? तब अब्राहम ने ये प्रश्न परमेश्वर के सामने डाला कि अगर वहाँ पर 50 धर्मी लोग रहेंगे तो क्या आप उस शहर को नाश करेंगे? God said he would not destroy the city with the 50 righteous people. और तब परमेश्वर ने कहा कि वो उन 50 अगर वहाँ पर 50 धर्मी लोग रहेंगे तो वो उस शहर को नाश नहीं करेंगे। Now Abraham realized और अब अब्राहम इस बात को समझ रहा था, the way the conversation went. और जिस तरीके से वो बातचीत गई, God didn't say, I'm not going to destroy the city. परमेश्वर ने ऐसे नहीं कहा कि मैं उस शहर का नाश नहीं करूंगा। God said, if he finds 50 righteous. परमेश्वर ने ऐसे कहा कि अगर वहाँ पर 50 धर्मी लोग रहे तो। So immediately Abraham felt maybe there are not 50 righteous there. तो तुरंत ही अब्राहम को ऐसे लगा कि शायद वहाँ पे 50 धर्मी लोग नहीं हैं। So Abraham changed his position. और तब अब्राहम अपने जगह को बदलता है। Actually 6 times he changed his request. और 6 बार उसने अपनी जो परमेश्वर के सामने जो विनती थी उसे He बदला। started with 50, और वो 50 से शुरू किया, came down to 45, और फिर 45 पर वो आया, and then to 40, और फिर 40 पर, and then to 30, और फिर 30 पर, then to 20. और फिर 20 पर। And when God kept on saying, if I find even 10, I will not destroy. और तब परमेश्वर ने कहा कि अगर मुझे 10 भी मिले तो भी मैं शहर का नाश नहीं करूंगा। And that is where Abraham stopped. और वहाँ पर अब्राहम रुक गया। Of course, some people argue. और कुछ लोग They say वो ऐसे कहते हैं that Abraham shouldn't have stopped there. कि अब्राहम को वहाँ पर रुकना नहीं He चाहिए should था। have continued to plead with God for 5 righteous or even 2 righteous. अब्राहम को परमेश्वर से विनती करते रहनी चाहिए थी, 5 धर्मी फिर 2 धर्मी तक। And let us not get into that. हम उसमें नहीं जाएंगे। At the end, Abraham was disappointed. और अंत में अब्राहम बहुत हताश हुआ। And fourthly,
और चौथी बात, does God respond to the intercession of His loved ones? कि क्या परमेश्वर अपने प्रतिक्रिया दिखाते हैं जब परमेश्वर के प्रेमी उनसे मध्यस्थी करते हैं तो। From Ezekiel we learn that God is looking out for intercessors. और एजिकियल की किताब से हमने सीखा कि परमेश्वर वो मध्यस्थी करने वालों को ढूंढते हैं। If you and I we become intercessors with God, अगर आप और मैं मध्यस्थी करने वाले बने परमेश्वर के would साथ, God honor our intercessions and answer our intercessions? क्या परमेश्वर हमारे मध्यस्थी को सराहेंगे और उसका उत्तर देंगे? Did Abraham's intercession yield a desired result? क्या अब्राहम का जो मध्यस्थी करना था वो उस निर्णय पर आ पहुंचा? Today we know that he did. आज हमें पता है कि वो पहुंचा था, Because we read from the scripture, क्योंकि हम वचन से पढ़ते हैं God saved Lot and his family. कि परमेश्वर ने लूत और उसके परिवार को बचाया। Most importantly, और सबसे महत्वपूर्ण बात Abraham did not know that God had saved Lot and his family. कि अब्राहम को नहीं पता था कि परमेश्वर ने लूत और उसके परिवार को बचाया God है। gave freedom for Abraham to argue with him. और परमेश्वर ने ये स्वतंत्रता दी अब्राहम को कि अब्राहम परमेश्वर से बातचीत कर सके इस विषय And पर। then at the end, Abraham was disappointed and went back to his tent. और अंत में अब्राहम हताश होकर अपने तंबू में लौट गया। But God in turn, He saved Lot and his family. और परमेश्वर ने जो अब्राहम ने मध्यस्थी की थी उसके द्वारा लूत और उसके परिवार को Though his बचाया। wife committed a harakiri, और उसकी पत्नी ने हाराकिरी की, but he saved his family. लेकिन उसने उसके परिवार को बचाया। At the end, और अंत में God remained just and righteous. परमेश्वर वो न्यायाधीश और धर्मी रहा। He judges the wicked. और वो न्याय करते हैं दुष्टों का। He saves his righteous ones. और वो अपने धर्मी जनों को बचाते हैं। Abraham remained ignorant of God's compassion and Abraham's answered prayers. अब्राहम को पता नहीं चला कि उसके प्रार्थनाओं का उत्तर दिया गया है। He, as far as the scriptures concerned, record of the scriptures concerned, he remained ignorant till the end. और जैसे पवित्र शास्त्र बताती है कि वो अंत तक उसे पता नहीं चला था कि उसकी प्रार्थना का उत्तर मिला Next है। morning he comes and he stands at the same place where he had interceded with God. और अगली सुबह वो आकर उस जगह में खड़े हो जाते हैं जहाँ पर उसने परमेश्वर के साथ मध्यस्थी की थी। From far away he could see the smokes. और दूर से ही उसे वो धुआं दिखाई Read दे रहा chapter था। 19 verse 27. और हम उत्पत्ति का 19 अध्याय वचन 27 पढ़ेंगे। भोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया जहाँ वह यहोवा के सम्मुख खड़ा था। And so he came and he saw, and then read furthermore. और सदोम और अमोरा और उस तराई के सारे देश की ओर आँख उठाकर क्या देखा कि उस देश में से धधकती हुई भट्टी का सा धुआं उठ रहा है। And so he saw the evidence that both the cities are destroyed totally. और उसने वो वहाँ पर धुएं को देखा कि दोनों शहर का नाश हुआ है। So what is the application from this to you and me today? और इसमें से आज आपके लिए और मेरे लिए सीखने वाली बात What is क्या है? take home for you and me from this passage today? और आपके लिए और मेरे लिए आज हम इसमें से क्या घर ले जा Number सकते one, हैं? पहली बात, Be generous and be generous to the needy people around us. कि आप उदारता से रहे आपके इर्द गिर्द जो जरूरतमंद है उनके Of प्रति। course, people are always trying to take advantage of such people. और लोग ऐसे लोगों का फायदा उठाने की But कोशिश what करते about हैं। our own family, the first Shalom family? लेकिन जो शालोम की कलीसिया है उसका क्या? There are so many needy people. और हमारे बीच में कई जरूरतमंद है। Can we be generous towards them? क्या हम उदारता से उनके प्रति रह सकते Now, हैं? I rejoice when I
realized, I came to know, और मैंने आनंद मनाया जब मुझे ये बात पता there are चली। few families within us. ऐसे कुछ परिवार हैं हमारे बीच में, They share their rations with others. और उन्होंने अपने राशन को बांटा दूसरों Oh, के that's a साथ, great blessing. और वो बहुत आशीष की बात Now है। be generous. आप उदारता से रहे, Of course, we don't have to be rich to be generous. और हमें अमीर होने की जरूरत नहीं है ताकि हम उदारता से रहे। If you become very rich, और अगर आप बहुत अमीर बने तो you find it very difficult to be generous. आपको और कठिन होगा कि आप उदारता का So जीवन within जिए। your own resources, तो आपके पास जो भी है you can be generous. उसी में ही आप उदारता के साथ जी If सकते not हैं। through the material means, with your good words, encouraging words. सिर्फ कुछ चीजों को देने के लिए नहीं, लेकिन आप अपने शब्दों के द्वारा भी उदारता से रह सकते हैं। Secondly, दूसरी बात, strangers could be God sent angels. और जो लोग आपके लिए अनजान हैं वो परमेश्वर से भेजे हुए स्वर्गदूत हो सकते We हैं। never know whom we show generosity and help. और हमें नहीं पता कि वो कौन है जिनके प्रति हम उदारता दिखाते हैं। Turn to Hebrew chapter 13 verse 2. और हम इब्रानियों की किताब में आएंगे। It says, so many have entertained strangers, angels in form of strangers without knowing they were angels. और यहाँ पे कैसे कहा गया है कि बिना जाने जो अतिथि सत्कार किया जाता है स्वर्गदूतों का। इब्रानियों का 13 अध्याय वचन 2, अतिथि सत्कार करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। And listen to what the Lord said. और यहाँ पे सुने जो परमेश्वर ने Turn कहा to है। Matthew chapter 25 verse 40. और हम मत्ती का 25 अध्याय वचन 40 में आएंगे। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किया, मैं किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया है। Yeah, we can be generous to all, और हम उदारता से सबके साथ रह but सकते let हैं, us be more generous to our own brothers and sisters. That is what the more precious to in the eyes of Jesus. लेकिन हमें हमारे भाई बहनों के साथ ज़्यादा उदारता से रहना है जो परमेश्वर के वचन में कहा Third है। lesson, और तीसरी बात, if you have committed yourself to God's purpose, अगर आपने अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित किया है तो through your own walk with God, और आपका जो चलन है परमेश्वर के lead साथ, your family also in the ways of God. आप अपने परिवार को भी परमेश्वर के साथ चलाएं। That should start right from the time the child is born. और वो उसी समय से शुरू होना चाहिए जब एक बच्चे का जन्म होता If है। you are not faithful in your walk with God, और अगर आप विश्वास योग्य नहीं है परमेश्वर के साथ तो you can never lead your children to walk with God. आप अपने बच्चों को कभी उस मार्ग पर नहीं चला सकते। Fourthly, चौथी बात, even today God is looking out for people to stand in the gap and intercede. और आज भी परमेश्वर उन लोगों को देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं जो उस गैप में खड़े होकर मध्यस्थी कर सके, So he would not destroy the wicked. ताकि वो दुष्टों का नाश न करे। Do you feel the burden for the wicked? क्या आपको वो बोझ लगता है दुष्टों के लिए? We show our the disappointment, even our anger against the wicked. और हम साधारण रूप से अपना क्रोध दिखाते हैं दुष्टों के प्रति, Do we pray for them? बट क्या हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं? Instead of becoming bitter against these wicked people, और कड़वापन अपने अंदर उन दुष्टों के लिए लाने से अच्छा है we pray for them. कि आप उनके लिए प्रार्थना करें। Fifthly, पांचवी बात,
intercessors come close to God when they intercede with God. जो मध्यस्थी करने वाले वो परमेश्वर के करीब आते हैं जब वो मध्यस्थी करते Once हैं। again we read that Genesis 18:23. और हम फिर से उत्पत्ति का 18वां अध्याय वचन 23 In King पढ़ेंगे। James Version it says, और जो किंग जेम्स वर्जन है उसमें ऐसे कहा गया है, Abraham drew close to God, to came very near to God to start interceding. अब्राहम वो परमेश्वर के बहुत करीब आया कि वो मध्यस्थी करना शुरू करे। And therefore, और इसीलिए intercessors come more close to God. कि ये जो मध्यस्थी करने वाले हैं वो परमेश्वर के और करीब आते हैं। If you want to come close to God, you start interceding for people, for God's purpose. अगर आपको परमेश्वर के और करीब आना है तो आप लोगों के लिए मध्यस्थी करना शुरू करें। Finally and sixthly, और आखिर में छठी बात and most importantly, और बहुत ज़रूरी, do not get discouraged when your prayers are not answered. आप निराश ना हो जब आपके प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता है। Only in the eternity, in the yonder, in heaven, you will come to know how God answered your prayers. अनंत काल में और स्वर्ग में आपको पता चलेगा कि किस तरीके से परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। Abraham, from the records of the scripture, I can say Abraham never came to know that God had rescued Lot. जैसे वचन में बताया गया है कि अब्राहम को कभी पता नहीं चला कि लूत को बचाया गया At है। least we don't find in the scripture that God had rescued him. हमें वचन में ये बताया नहीं गया है कि परमेश्वर ने लूत को बचाया। And Abraham did not think that God rescued him. और अब्राहम ने ये सोचा भी नहीं था कि परमेश्वर ने लूत को बचाया। But we know लेकिन हम जानते हैं God actually rescued Lot and his family. कि परमेश्वर ने लूत और उसके परिवार को बचाया। So don't get discouraged when your prayers are not answered. इसलिए आप निराश ना हो जब आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता Don't है give तो। up when you see the wicked don't turn to the Lord. और आप हार ना माने जब आप देखते हैं कि दुष्ट लोग वो अपने मार्ग से नहीं पलटे। Don't get discouraged when you witness to someone they reject you. और आप हार ना माने जब आप किसी के लिए गवाही बनते हैं और आपका तिरस्कार किया जाता है। God is looking for more intercessors today. और परमेश्वर और मध्यस्थी करने वालों को ढूंढ रहे Abraham हैं। was growing in maturity, और अब्राहम वो परिपक्वता में बढ़ रहा था। gained confidence of God, so God could put his trust in Abraham. और परमेश्वर के भरोसे को उसने जीता और तब परमेश्वर ने अपना भरोसा अब्राहम You में can be दिखाया। that person in whom God would repose his confidence. और आप वो व्यक्ति बन सकते हैं जिसमें परमेश्वर अपना भरोसा दिखाए। And he would give you a burden to pray someone, or और- pray for someone. और परमेश्वर आपको बोझ देंगे कि आप दूसरों के लिए प्रार्थना करें। God is looking for someone to stand in the gap. और परमेश्वर ढूंढ रहे हैं कि कोई उस खाली जगह को भरेगा। You could be that person. और आप वो बन सकते हैं। Will you be that person? क्या आप वो व्यक्ति बनेंगे? You decide. वो आपको That निर्णय is लेना what we है। learn from Abraham's life. और वही हम अब्राहम के जीवन से सीखते God हैं। bless you. प्रभु आपको आशीष The दे। worship team will come and lead us in worship, and then I'll pray. और स्तुति आराधना का दल आएगा और हमें आराधना में चलाएगा, फिर मैं प्रार्थना करूंगा। जय मसीह। फिर से जय मसीह। जैसे हम वचन सुने हैं तो क्यों ना हम सब खड़े हो जाए अपने जगह में, क्यों ना हम ये गीत गाएंगे तूने कहा है। कुछ भी मांगो
us pray. हम प्रार्थना करेंगे। You have heard the message. और आपने संदेश को सुना है। Has God touched your heart? क्या परमेश्वर ने आपके हृदय को छुआ है? Has the Holy Spirit inspired you to do something? क्या पवित्र आत्मा ने आपको प्रेरणा दी है कि आप कुछ करें? And challenge you to be an encourager to others? और आपको चुनौती दी है कि आप दूसरों के लिए उत्तेजन To बने be generous with others? और उदारता से रहे दूसरों के साथ And to intercede for others? और दूसरों के लिए मध्यस्थी कर Have सके। you been discouraged for God has not answered your prayers? क्या आप निराश हुए हैं कि परमेश्वर ने आपके प्रार्थनाओं को नहीं सुना? And we see from life of Abraham, और हम अब्राहम के जीवन से देखते हैं definitely he was very disappointed, और वो बहुत निराश हुआ था, but God did not disappoint him from his part. लेकिन परमेश्वर ने अपने तरफ से उसे निराश नहीं किया On his part, he answered prayers and rescued Lot. और अपने तरफ से परमेश्वर ने प्रार्थना का उत्तर दिया और लूत को बचाया। Even if you don't get to see the result, अगर आपको जो उसका रिजल्ट है वो दिखाई ना दे, and our God is righteous God, लेकिन हमारे परमेश्वर वो धर्मी परमेश्वर he है, will do right thing in right time. वो सही समय पर सही चीजें करते Only हैं। in eternity you would discover all the answered prayers. सिर्फ अनंत काल में आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने आपके प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। Would you submit yourself to be an intercessor for God? क्या आप अपने आप का समर्पण करते हैं कि आप मध्यस्थी करने वाले बनेंगे? And don't give up आप हार न माने and continue to pray. और लगातार प्रार्थना करते Even हैं। if you don't see the answer. अगर आपको उत्तर नहीं दिख रहा है तो भी Lord God, we commit ourselves. प्रभु परमेश्वर, हम अपने आप को आपके चरणों में We समर्पित। learn few things today. हमने कुछ चीजें सीखी आज We want to be generous people. और हमें उद्धारता का जीवन जीना है। There are always more needy people than we are और वहाँ पर हमसे भी ज्यादा जरूरतमंद लोग होते हैं within our family of Shalom, हमारे शालोम के परिवार में। and help us to reach out to them. मदद करे कि हम उन तक पहुँच सके। If not through means of material help, और अगर हम कुछ चीजों को देकर मदद नहीं कर सके तो at least with good words and encouraging words, we can be generous with people. कम से कम हम हमारे शब्दों के द्वारा उनके लिए उत्तेजन बन सके और उद्धारता का शब्द हम उपयोग कर सके। And we also learn that और हमने ये भी सीखा while interceding, we come more close to you. जब हम मध्यस्थी करते हैं तब हम आपके और करीब आते हैं All want to walk more close to you. और सब आपके करीब चलना चाहते हैं। This is one way we have discovered today, और ये एक तरीका है जो आज हमें पता चला है and that through interceding, we come close to you. कि मध्यस्थी करने से हम आपके और करीब आते हैं। Help us not to be discouraged, और मदद करे कि हम निराश ना हो never to give up. और कभी हार न माने। And in heaven, we would see the result of prayers and intercessions. और स्वर्ग में हमें हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देखने मिलेगा। And bless us and keep us. हमें आशीष दे और हमें We संभाले। ask all these mercies in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. और ये सारी विनती प्रार्थना हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen and amen. आमीन और आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Our subcommittee is working on the possibilities when government allows us, we will come here and how we can be worshipping here. और हमारी जो सब कमेटी है वो इस चीज़ पर काम कर रही है कि जब गवर्नमेंट हमें इजाज़त देगी तो हम यहाँ पर आए। And we will keep you informed through our leaders. और अगुवों के द्वारा आपको सारी जानकारी मिलती God रहेगी। bless you. प्रभु आपको आशीष दे Greet one another. और एक दूसरे से मिले Rejoice in the Lord. और परमेश्वर में आनंद मनाए। Thank you. धन्यवाद।